ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ جیسے ہی کلاس لے کر باہر نکلی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر نظر آنے والے نمبر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا۔ کیا ہوا، تم پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ کس کا فون ہے؟ نور جو کہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی، اس نے ایک ہی سانس میں عائشہ سے ڈھیر سارے سوالات کر ڈالے۔ عائشہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور موبائل کانوں سے لگا لیا۔ اس وقت کہاں پر ہو تم؟ اور نور کہاں پر ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اسے گھر سے لے کر جانے کی؟ میں نے تایا جان سے اجازت لی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نور کو موبائل دو، آپ پلیز اس سے کچھ مت کہیے گا۔ تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تم اپنی اوقات میں رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اسے خاموش کروا چکا تھا۔ اس کا چہرہ شدت ضبط کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل نور کے حوالے کیا۔ اسکرین پر نظر آنے والے نمبر کو دیکھ کر نور کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا، تم بس کانفیڈنس سے اس کی بات کا جواب دینا۔ بھائی، آئی ایم سوری، میں نے بابا سے بات کی تھی۔ نہ جانے اس نے نور کو کیا کہا کہ وہ موبائل بند کر کے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ عائشہ کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ پوری زندگی میں بھائی کی قید میں ہی گزار دوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ مجھ پر اتنا شک کیوں کرتے ہیں، حالانکہ جو کچھ امی نے کیا اس میں میرا کیا قصور؟ میرے بھائی کو سمجھا سمجھا کر میں تھک چکی ہوں کہ میں امی جیسی نہیں ہوں، میں ایک اچھی لڑکی ہوں، مگر بھائی مجھ پر یقین ہی نہیں کرتے۔ بھابھی، ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ آپ میری مانیں تو بھائی سے دور ہو جائیں، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ آپ اس انسان سے شادی کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دیں گی۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ کو کوئی اچھا شخص ملنا چاہیے۔ وہ اسے مشورے دے رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر عائشہ کو لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے دل پر خنجر چلا رہا ہو۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ جس شخص سے وہ اسے دور ہونے کا کہہ رہی ہے وہ شخص اس کی روح کا حصہ بن چکا ہے، اور اب وہ اسے دوری اختیار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بھائی نے ہمیں یہاں پر رکنے کے لیے کہا ہے، وہ خود ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی اب ان دونوں نے باسط صاحب کی ایک بہت لمبی تقریر سننی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ 15 منٹ کی دیری کے بعد وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے نور کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود عائشہ کی طرف بڑھنے لگا۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ خود تو تم ایک آوارہ عورت ہو، اس کے ساتھ ساتھ میری بہن کو بھی آوارہ بنانا چاہتی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ عائشہ کا منہ نوچ ڈالے، جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر اپنی جگہ سن ہو چکی تھی۔ اپنے پسندیدہ شخص کے منہ سے اپنے کردار کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا باتیں سننا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ کوئی عائشہ سے پوچھتا۔ آپ میرے کردار پر وار کر رہے ہیں۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ آپ مجھ پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، حالانکہ میں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے بس اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروایا۔ تمہیں اس کی ماں بننے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں میری بہن کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، اور اس کی زندگی کا فیصلہ صرف اور صرف میں کروں گا۔ میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں، آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ تم ابھی صرف اور صرف ایک انجان عورت ہو۔ بیوی تم اس وقت بنو گی جب میں تم سے نکاح کروں گا۔ فی الحال ہم دونوں کا کوئی رشتہ نہیں، اور بہتر ہے کہ زبردستی کا رشتہ نہ بناؤ، کیونکہ ابھی میں نے تم سے شادی کے بارے میں ٹھیک طرح سے سوچا بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو میرا ارادہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ میں کسی بھی ایسی عورت سے شادی نہیں کروں گا جسے آوارہ گردیاں پسند ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت تک اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ محبت انسان کو کس قدر ذلیل کرواتی ہے، اس نے بے اختیار سوچا تھا۔
आंसू मोतियों की तरह टूट कर उसकी आंखों से गिर रहे थे। बेसाख्ता उसकी नज़र यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मौजूद एक कपल पर पड़ी। लड़का घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। लड़की करीब ही मुंह फुलाकर खड़ी थी। यकीनन वो उससे नाराज थी और वो उसे मना रहा था। वो चाहती थी कि उसका और बासित का रिश्ता भी इसी तरह से हो। कभी वो नाराज हो तो बासित उसे मनाए, और कभी अगर बासित नाराज हो तो वो उसे मना ले, मगर उसका मंगेतर हमेशा उससे नाराज रहता था। रिक्शा मिलने में भी उसे काफी देर हो गई थी। शदीद गर्मी में वो घर पहुंची। बासित की वजह से उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। उसने अपना बैग सोफे पर उछाला और खुद चेयर पर बैठ गई। नूर, जरा पंखे का बटन ऑन करना, उसने बहन को कहा। थोड़ी देर पहले ही लाइट गई है। सामने से उसे कोरा जवाब मौसूल हुआ। एक तो जिंदगी अजाब बनी हुई है, एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं है। उसने एकदम ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? बस दिमाग खराब हो गया है मेरा, और कुछ नहीं। अपनी माँ से बदतमीजी करते हुए वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। ताहिरा बेगम ने बेसाख्ता इकरा की तरफ देखा। इसको क्या हो गया? अब और क्या हो सकता है इसे? फिर से बासित भाई के साथ लड़ाई हो गई होगी। आपने भी ना हद ही की है। आप जानती हैं कि इन दोनों का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। बासित भाई को देख लें, उनकी किसी से भी नहीं बनती, और एक नंबर के शक्की मिजाज इंसान है। कैसे आप ही का उसके साथ गुजारा होगा? बेवकूफ़ औरत, तुम ये क्यों नहीं देख रही कि वो इतनी ज्यादा दौलत का मालिक है, 4 बंगलों का इकलौता वारिस है। उसके साथ उसके बाप का वसी पैमाने पर फैला हुआ बिजनेस भी है। अम्मी बस कर जाएं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान को अपनी जिंदगी में सुकून भी चाहिए होता है, और ऐसी जिंदगी जिसमें सुकून ना हो, वहां पर पैसे की भी कोई अहमियत नहीं होती। इकरा अच्छी खासी समझदार लड़की थी, और वो अपनी बहन के दिल के हालात को भी समझती थी। उसके साथ साथ वो ये भी जानती थी कि उसकी माँ ने लालच की वजह से रिश्ता किया है। उनके बाबा का 3 साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। बाप के इंतकाल के बाद उनके ताया जान ने उनकी जिम्मेदारी उठा ली। हर महीने एक मखसूस मोटी रकम उनके घर पहुंच जाती थी, और उसके अलावा वो उन्हें घर का राशन भी डलवा कर देते थे। उनकी दोनों बेटियों की यूनिवर्सिटी की फीस भी उसके ताया जान ही अदा करते थे। इकरा बहुत खुददार थी, मगर इस मामले में वो खुद भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी कि जब तक वो कोई नौकरी नहीं करेगी तब तक उसे अपने ताया पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले उन्होंने आयशा और बासित के रिश्ते की बात की थी। ताहिरा बेगम तो उसी वक्त उन दोनों का निकाह करने के लिए तैयार हो गई थी, मगर फिलहाल उन्होंने वक्त मांगा था, क्योंकि बासित की उन दिनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील चल रही थी, और वो इस दौरान किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। अभी उन दोनों के रिश्ते की बात ही चली थी। उन दोनों की मंगनी नहीं हुई थी, मगर वो उसे अपना मंगेतर समझने लगी थी। उसे बासित बचपन से ही बहुत पसंद था। वो बाकी सब बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था, हमेशा अलग थलग रहता था। उसके पीछे एक और कहानी भी थी। बासित ने कभी दोस्त नहीं बनाए थे, उसे लड़कियों से भी नफरत थी। आयशा का शुमार भी उन्हीं लड़कियों में होता था। बचपन से ही वो बहुत शरारती, खुदसर और आज़ाद ख्याल थी। उसके दिल में जो आता वो करती थी, किसी की बात नहीं मानती थी। उसको ये आज़ादी उसके बाप ने दे रखी थी, और अपने बाप के ही बलबूते पर वो बड़े बड़े फैसले भी कर लेती थी। क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए पूरे ख़ानदान में उसकी जहानत के चर्चे थे। हर बार वो बासित से ज़्यादा नंबर लेती, जिसकी वजह से बासित के दिल में उसके लिए नफरत कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती चली गई, क्योंकि उसके घर में उसका बाप हमेशा आयशा की बातें करता रहता था। देखो आयशा पढ़ाई में कितनी अच्छी है, देखो उसने स्पोर्ट्स में भी पहली पोजीशन हासिल की, वो घर की जिम्मेदारियों में भी ताक है। और फिर जब आयशा ने अपने बाप के साथ उनके बिजनेस में हिस्सा लिया तो फेरोज साहब ने अपने बेटे का जीना हराम कर दिया। उस वक्त बासित ने भी ठान ली थी कि वो बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाकर रहेगा। उसके बाद किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि आयशा के वालिद इस फ़ानी दुनिया से इंतकाल कर गए। उनका बिजनेस भी डूब गया, क्योंकि उन्होंने बहुत से कर्जे ले रखे थे।
जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, मुख्तलिफ कंपनीज और शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा मांगने आ गए। उस वक्त फिरोज साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन सब लोगों को निपटा लिया। आखिर में इन माँ बेटियों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया था, मगर इस मुश्किल घड़ी में फिरोज साहब उनका सहारा बने थे। उन्होंने भाई की वफात से लेकर आज तक कभी भी इन माँ बेटियों को एहसास नहीं होने दिया था कि वो किसी और की मोहताज हैं। चीज़ें वक्त से पहले ही उनके घर पहुंच जाती थी, उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही थी, उनकी ख्वाहिशात की तकमील हो रही थी। इससे बढ़कर उन लोगों को और क्या चाहिए था? हाँ, एक सहारे की कमी थी, वो सहारा जिसके बगैर हर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। बाप के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी आयशा पर आ गई थी। ना सिर्फ वो घर को देखती, बल्कि उसके साथ साथ उसे बाहर के मामलात भी देखने पड़ते थे। अब उसकी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म होने वाली थी, इसलिए उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। कल रात ही उसे फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी कि वो हायर हो चुकी है। 2 दिन के बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। उसके ताया जान ने भी उसे दरख्वास्त की थी कि वो नूर का दाखिला किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में करवा दे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी अब घर से बाहर निकले ताकि उसे दुनिया के हालात के बारे में पता चले। जहाँ तक बासित का सवाल था, उन्होंने सोच लिया था कि वो खुद उससे निपट लेंगे, मगर ये काम उन्हें जितना आसान लग रहा था, यह उतना आसान था भी नहीं। जब मैंने कहा था कि ये लड़की इस घर से कदम नहीं निकालेगी, तो आपने उसे घर से बाहर निकलने की इजाज़त क्यों दी? वो इस वक्त अपने बाप के रूबरू खड़ा उनकी आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए सवाल पूछ रहा था। अपनी आवाज नीची करो बरखुरदार, मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। उसने बेचैनी से अपनी पेशानी को मसला। बाबा जान, आपने इसे घर से बाहर निकलने की इजाजत क्यों दी? उसने एक नजर रोती हुई नूर पर डाली, जो कि थोड़े ही फासले पर खड़ी थी। तुम क्या इसे सारी जिंदगी इस घर में कैद रखना चाहते हो? इस जैसी लड़कियों के लिए यही ठीक है, उसने नफरत आमेज लहजे में कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है जो तुम उससे इतना बदजन हो गए? बाबा जान, आप भूल रहे हैं कि ये उसी औरत का गंदा खून है जिसने आपको धोखा दिया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, फिरोज साहब का हाथ उठ गया और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम भी फिर उसी औरत का ही गंदा खून हो। खुदा के लिए बस कर जाओ, बहुत हो गया ये तमाशा। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है जो मैं तुम्हारे रोज बरोज के ड्रामे देखूं। ये तुम्हारी बहन है और तुम्हारा खून है, और मुझे अपनी बेटी पर यकीन है। मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत पर कोई फर्क पड़े। और जहां तक बेवफाई और गद्दारी करने का सवाल है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई औरत घर की 4 दीवारी के अंदर रहते ये काम नहीं कर सकती? अगर उसने तुम्हारे साथ या मेरे साथ बेवफाई करनी होती तो ये कब की कर चुकी होती। मगर मैं अपनी बेटी को जानता हूं, ये सिर्फ उस औरत का खून नहीं बल्कि ये मेरा भी खून है। हमारे खानदान की इज्जत है, और जब तक हम अपनी इज्जत को मान नहीं बख्शेंगे तब तक तुम भी शक में मुब्तला रहोगे, और तब तक मैं भी परेशान रहूंगा। ये कल से यूनिवर्सिटी जाएगी। मैंने इसकी जिम्मेदारी आयशा के हवाले की है। उम्मीद है अब तुम किसी किस्म की बहस नहीं करोगे। और अब खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोंगली उठाकर उसे धमकी देते हुए वहां से जा चुके थे। बासित ने गुस्से भरी एक नज़र नूर पर डाली, जो उसे देखकर मजीद सहम गई थी, मगर वो उसे कुछ कहे बगैर ही बाहर निकल गया। वो इस वक्त रोड पर तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आयशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने एक बार फिर मेरे बाप के हाथों मुझे जलील करवाया है। इस बार तो तुम्हें तुम्हारे किए की ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगी। तुम नहीं जानती, इस बार तुमने मेरी अना परवार किया है। इस बार तुम्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। वो अपने ख्यालात में आयशा से मुखातिब था, जबकि वो उसे मुकम्मल तौर पर अनजान अपने कमरे में बैठी पेंटिंग में मसरूफ थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सर उठाकर देखा, सामने ही वजदान खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहिबा,
कैसी हैं आप? मोहतरम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आजकल नजर नहीं आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से डेटिंग शुरू कर दी है? वो उसकी फितरत से वाकिफ थी और ये भी जानती थी कि वजदान की एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स थी जिनके साथ वो हर रोज डेट पर जाता था। बस कर जाओ, क्यों तुम मेरी शादी होने से पहले ही तलाक करवाना चाहती हो? वो उसके लबों पर हाथ रखता बेचैनी से बोला। उसके साथ ही खौफजदा नजरों से अपने चारों तरफ देखने लगा। अगर तुमने इस लड़की से शादी करनी है तो तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। यह शर्त मैंने बहुत पहले तुम्हारे सामने रखी थी, क्योंकि मैं अपनी प्यारी, मासूम और सादा सी बहन का रिश्ता एक शातिर इंसान को नहीं दे सकती जिसके माजी में बहुत से स्कैंडल रह चुके हों। यार, क्या हो गया तुम्हें? सिर्फ 3 ही गर्लफ्रेंड्स थी मेरी, और वो भी तुम जानती हो कि मेरा रिलेशनशिप 1 महीने से ज्यादा नहीं चल सका। उन लड़कियों को पैसे चाहिए होते थे, जबकि मैं ठहरा सदा का कंगाल इंसान। देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी लॉयल्टी को मुलाहिजा फरमाओ। जैसे ही मुझे जॉब मिली है तो सबसे पहले तुम्हारी बहन का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आया हूं। बेटा जी, ये रिश्ते ऐसे तय नहीं होते। आपको हमारी अम्मी जान से बात करनी होगी। तुम्हारी अम्मी जान तो करोड़ वाले बंदे से नीचे बात ही नहीं करती। कसम से, जितनी लालची तुम्हारी माँ है, मैंने इतना लालची किसी को नहीं देखा। वो मुंह बनाते हुए बोला। आयशा ने जोरदार चमाट उसके सर पर लगाई। बदतमीज, मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो? यार, कसम से सच कह रहा हूं, कल भी उन्होंने मुझसे मेरी तनख्वाह के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि 2 लाख है, तो मुंह बनाते हुए कहने लगी, तुम्हारी उम्र के लोग 50-50 लाख भी कमा रहे हैं। भाई, अब कोई उनसे पूछे कि डिग्री के फौरन बाद 50 लाख की नौकरी कौन देता है, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी ना हो। वो बहुत जला कुड़ा लग रहा था। वो खुलकर मुस्कुरा दी। अच्छा, ज्यादा ड्रामे लगाने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ कि क्या मसला है और मेरे पास क्यों आए हो? मैं बस चाहता हूं कि तुम अपनी अम्मी से मेरी और इकरा के रिश्ते के बारे में बात करो। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तुम जानती हो कि मैं उसे बहुत पहले से पसंद करता हूं। मैं बस चाहता हूं कि सादगी से उससे निकाह कर लूं। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं कल ही अम्मी से इस बारे में बात करती हूं। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? एकदम ही वो बहुत पुरजोश हो गया था। हाँ, मैं सच कह रही हूं। वो वहां से जाने ही लगा था कि कुछ सोचते हुए पलटा। बासित, और तुम्हारे कैसे हालात चल रहे हैं? वो नासमझी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? भाई, मतलब बिल्कुल साफ है। बासित ने फिर तो किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं किया, क्योंकि मुझे तो लगता है वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम बहुत खूबसूरत हो, अच्छी हो, समझदार हो, सबसे बढ़कर यह कि एक इज्जतदार लड़की हो, मजबूत किरदार की मालिक हो। तुम किसी भी अजीम इंसान का ख्वाब बन सकती हो। तो क्यों अपनी जिंदगी उस पागल साइको नफ्सियाती इंसान के साथ गुजार रही हो? मोहतरम, आप इस वक्त मेरे होने वाले शौहर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने दोबारा उनकी शान में इस तरह के अल्फाज बोले तो भूल जाइएगा कि मैं आपका रिश्ता अपनी बहन से कराऊंगी। नहीं नहीं मलका आलिया, ये जुल्म मत कीजिएगा, आपसे माफी मांगते हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद इकरा तन फन करती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसका मुंह गुस्से से फूला हुआ था। क्या हुआ है तुम्हें? उसने प्यार से उसके गाल खींचे। देखते ही देखते वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना सर अपनी बहन के कंधे पर टिका दिया। मुझे जुनैद से शादी नहीं करनी। मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो कि उसका निकाह टूट चुका है। वो 1 नंबर का अयाश इंसान है। तो मेरी जान, तुम्हारी शादी उससे कौन करवा रहा है? वो हैरानगी से उससे पूछने लगी। अम्मी जान मेरे रिश्ते की बात कर चुकी हैं। जुनैद बासित का ही कज़न था और बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। कुछ दिन पहले उसने बासित से इकरा के बारे में बात की थी। वो उसे एक पार्टी में पसंद कर चुका था और अब उसके लिए रिश्ता भी भिजवा दिया था। इसकी माँ तो जैसे इंतज़ार में बैठी थी
कि किसी अमीर ज़ादे का रिश्ता आए और वो अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय कर दे। ये सुनकर आयशा का दिमाग गुस्से से घूम गया। अम्मी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन को कुर्बानी का बकरा बनने दूंगी? आए हाय, क्या हो गया तुम्हें? कौन सी कुर्बानी मांग ली मैंने तुम्हारी लाडली बहन से? वो जो मुंह में पान दबाए बैठी थी, बेटी की इस हरकत पर बदमजा हुई। आप जानती भी हैं कि जुनैद की उम्र इससे डबल है, तो आजकल के ज़माने में उम्र कोई नहीं देखता, मर्द की जेब देखी जाती है। वो बहुत अमीर इंसान है, तुम्हारी बहन को बहुत खुश रखेगा। और इकरा तो अभी खुद कमअकल और नादान है, इसे क्या पता इस तरह के मामलात। वो बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रही थी, यूं जैसे उनके लिए कोई बड़ी बात ना हो। इकरा का निकाह सिर्फ और सिर्फ वजदान से होगा। वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करता है। उसने बहुत पहले मुझसे इस बारे में बात की थी। मैं उस कंगले के हवाले अपनी बेटी नहीं करूंगी। आपको ऐसा करना होगा। वो जानती थी कि उसकी मां जिद्दी है, मगर वो भी अपनी मां से 2 हाथ आगे थी। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। उसकी मां ने उन लोगों को वहां पर रस्म के लिए भी बुला लिया था। कल ही उन दोनों की मंगनी की एक छोटी सी रस्म रखी गई थी और इकरा का रो रो कर बुरा हाल था। उसने एक बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचा। वो खुद अब जुनैद से इस बारे में बात करने का इरादा रखती थी। एक दिन वो उसके ऑफिस का पता करते हुए उसके ऑफिस पहुंच गई। अरे मोहतरमा, आइए बैठिए, कैसे आना हुआ आपका? मैं यहां पर बैठने नहीं बल्कि आपसे साफ अल्फाज में बात करने के लिए आई हूं। आप मुझे थोड़ी सी गुस्से में दिखाई दे रही हैं, क्या कोई मसला है? जुनैद एकदम फिक्रमंद हो गया। आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी आपसे नहीं करने दे सकती। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। आपको लगता है कि आप मुझे कहेंगी और मैं आपकी बात मान लूंगा? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अपनी मोहब्बत के मामले में मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। आप थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। वो आपसे उम्र में 10 साल छोटी है। फर्क नहीं पड़ता, बस मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। वहां पर खड़े हुए उसे थोड़ी देर गुजरी थी कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और बासित ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। सामने अपनी होने वाली बीवी को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उसे कभी जुनैद के साथ देखेगा। आयशा भी एकदम बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम यहां पर क्या कर रही हो? वो उसे खून ख्वार लहजे में सवाल करने लगा, जबकि जुनैद सामने नजर आने वाले तमाशे को बहुत ही मजे से देख रहा था। थोड़ी देर पहले तक वो लड़की इसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी और इसको धमकियां दे रही थी, और अब वो कोई सहमी हुई हिरनी मालूम हो रही थी। मैं जुनैद भाई से बात करने आई थी। उसने फौरन से अपना लहजा तब्दील कर लिया। ये देखकर जुनैद बल खा कर रह गया। वो उसकी चालाकी पर अश अश कर उठा था। यहां से बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। उसने बाहर जाने का इशारा किया और खुद जुनैद की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो तुमसे क्या बात करने आई थी? जेबों में हाथ डाले वो संजीदगी से उसे सवाल कर रहा था। जानता था कि उसकी मंगेतर कभी भी उसे पूरी बात नहीं बताएगी, और वो एक तरफ की कहानी सुनकर उस पर यकीन नहीं करता था। वो दोनों सिमतों का मौक़िफ़ जानना पसंद करता था। ये चाहती है कि मैं इसकी बहन से शादी से इनकार कर दूं, और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो मज़े से टांग पर टांग चढ़ाकर बोलने लगा। तुम्हें इस निकाह से इनकार करना पड़ेगा, बासित ने ठंडे लहजे में कहा। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्यों अपनी मंगेतर की बात मनवा रहा है, हालांकि वो वजह से भी वाकिफ नहीं था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने खुद ही तो रिश्ता करवाया था, और अब मैं ही ये रिश्ता ख़त्म कर रहा हूं। तुम्हारी इकरा से मंगनी नहीं होगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकला। जुनैद का बस नहीं चल रहा था, वो हर चीज़ तहस नहस कर डाले। वो थोड़े ही फासले पर डरी सहमी खड़ी थी। उसको अपनी जानिब आता देखकर खौफ से पीछे की तरफ हटी।
उस जगह पर कोई और नहीं था। बासित ने उसका बाजू मजबूती से दबोचा। यहाँ पर किसकी इजाजत से आई थी? मैंने अपनी अम्मी से इजाजत ली थी, उसने निगाहें चुराते हुए कहा तो वो अजीब से अंदाज में हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं जो तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लूंगा? आइंदा अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं भी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम जहां कहीं भी जाया करोगी पहले मुझे बताया करोगी। वो जितना एक्सपेक्ट कर रही थी बासित ने उतना ओवर रिएक्ट नहीं किया था, बल्कि वो उसे धमकी देकर डरा रहा था। चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। वो उसकी इस अनायत पर हैरान रह गए। आज उसके तेवर बदले हुए थे। आखिर ऐसी कौन सी खुशी थी जो बासित को मिली थी? वो इस बारे में जानना चाहती थी। काफी देर तक वो खिड़की से बाहर देखती रही, फिर अपने पेट में उठने वाले दर्द की वजह से मजबूर होकर उस दुश्मन जान से सवाल कर डाला, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है? दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। बासित ने उसके सवाल का जवाब देना पसंद नहीं किया था। वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील थी जो फाइनल हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद वो बोला था। बहुत ही मुख्तसर जवाब मौसूल हुआ था, मगर इससे भी वो खुश हो गई थी। वो ऐसी ही थी। बासित की जरा जरा सी अनायत पर उसका दिल खुशी से भर जाता और उसकी बेरुखी उसे मुरझाने पर मजबूर कर देती थी। इकरा इस इंसान से शादी क्यों नहीं करना चाहती? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो किसी अमीर शख्स की दुल्हन बने। मेरी बहन की सोच ऐसी नहीं है, उसने निगाहें झुकाते हुए कहा था। और वैसे भी वो और वजदान बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। बस अम्मी जिद पर अड़ी हुई थी। लेकिन अब जब जुनैद खुद ही उस रिश्ते से इनकार कर देगा तो अम्मी भी चुप कर जाएंगी। चलो ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगर जुनैद तुम्हें तंग करे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं खुद ही उस इंसान से निपट लूंगा। उसकी बातें सुनकर वो गश खाकर रह गई। आखिर एक रात में ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई थी जो बासित फिक्र करने लगा था। या अल्लाह, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? उसने बेसाख्ता खुद को चुटकी काटी, मगर हकीकत थी बासित की गाड़ी वहां से जा चुकी थी, मगर वो अभी तक अपनी जगह पर ही खड़ी थी। और फिर उस रात उस घर में तूफान आया था जब जुनैद ने उस रिश्ते से इनकार किया था। तायरा बेगम का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो जानती थी कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी बेटी का हाथ है, मगर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बड़े मज़े से कह देती, अम्मी आप जानती हैं कि मेरी बातों से कुछ भी नहीं होता। वजदान और इकरा की मंगनी हो गई थी। वो दोनों बहुत खुश थे। अब तायरा बेगम चाहती थी कि वो अपनी बेटी का निकाह कर दे, इसीलिए उन्होंने मंगनी के बजाय भाईजान को निकाह के लिए कहा। कुछ ही दिनों के बाद फैसला तय पाया कि जुमे के दिन इन दोनों का निकाह सादगी से करवाया जाएगा। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी जब उसका मोबाइल बजा। देखा तो किसी दुश्मने जान का फोन था। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल कानों से लगाया। वो बहुत कम इससे कॉल करता था और अब तो उसने तकरीबन 1 महीने बाद उसकी आवाज़ सुनी थी। कैसे हैं आप? वो हशाश बशाश लहजे में बोली। शायद ये कुछ ही दिनों के बाद होने वाले निकाह का कमाल था जो वो अभी से अपने दिल में उसके लिए मचलते हुए जज्बात महसूस करने लगी थी। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से घर से बाहर आओ। उसके सवाल का जवाब दिए बगैर वो अपने मखसूस खुरदरे लहजे में बोला। क्या कोई सीरियस बात है? वो भी परेशान हो गई, मगर उससे पहले ही वो फ़ोन काट चुका था। शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। पता नहीं ये इंसान खुद को समझता क्या है। आया किसी बड़ी रियासत का शहजादा। अगर आज इसने कोई गलत बात की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मैं भी किसी से नहीं डरती। दिल ही दिल में वो अपने आप को हिम्मत देती और उसे 100 बातें सुनाती। ठंड में घर से बाहर निकली। गुस्से में उसने स्वेटर भी नहीं पहना था और अभी एक छोटी सी शॉल में मलबूस थी। वो उसके घर से थोड़े ही फासले पर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसे देखकर सीधा हो गया। गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं?
वो सहमे हुए लहजे में बोली, तुम्हें पता चल जाएगा, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। मुझे ज्यादा सवाल करने वाली औरतें पसंद नहीं हैं। वो बेजारियत से बोला था। मगर सवाल करना मेरा हक है। उसने एक लम्हा ठहर कर जबान दराज आयशा की तरफ देखा। अब अगर तुम बोली तो यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। पूरा रास्ता अपने मुंह से एक लफ्ज भी ना बोली। वो उसे रात के इस पहर चाय पिलाने लाया था। आयशा को उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। उसे महसूस होने लगा था कि वो इंसान वाकई बीमार है। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मगर मैं चाहता हूं कि तुम खुद इस रिश्ते से इनकार करो, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे बाबा कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। और फिलहाल मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि अपने बाबा से अलग हो जाऊं। अपने बाबा का बिजनेस मैंने संभाला हुआ है, और वो बिजनेस उस वक्त तक मेरे नाम नहीं होगा जब तक मैं तुमसे निकाह नहीं कर लेता, जो बात मेरे लिए नामुमकिन है। आयशा को लग रहा था वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसकी आंखों में आंसू ठहर गए। कुछ दिनों बाद उसका निकाह था और वो इंसान इससे कह रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आपको मुझसे नफरत क्यों है? मुझे सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि हर औरत से नफरत है। औरतों को देखकर मेरा दिमाग गुस्से से घूम जाता है। औरतें एक बेवफा मखलूक हैं। मुझे तुम लोगों पर यकीन करने का दिल नहीं करता। आप ये सब कुछ अपनी माँ की वजह से। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो गुस्से से चिल्लाया, मेरी माँ का नाम मत लो। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जरूरी तो नहीं कि सब लड़कियां एक जैसी हों। अगर आपका एक तजर्बा गलत हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया को देखने लग जाएं। आप किसी को तो मौका देंगे ही। वो मौका मुझे दे दें। वो नहीं जानती थी कि वो अनाप परस्त और खुददार लड़की एक बेपरवाह इंसान की मिन्नतें क्यों कर रही है। बचपन में भी वो उससे बुरा सलूक करता था, मगर वो हमेशा उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आती। जब भी उसे पता चलता था कि उसके पेपर्स में कम नंबर आए हैं तो बासित से भी ज्यादा उसके दिल को तकलीफ पहुंचती थी। अक्सर ही वो अपने हिस्से की ट्रॉफी उसे देती थी, जिसे वो बेदर्दी से तोड़ देता। मगर इस बात पर भी उसने कभी शोर नहीं मचाया था और ना ही किसी को बासित की शिकायत लगाई थी। वो बचपन से उसके दिल में घर कर चुका था, और अब उसके मुंह से जुदाई की बातें सुनना किस कदर तकलीफ दे था ये कोई उससे पूछता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। ये मेरे लिए नामुमकिन है। वो दो टोक लहजे में बोली थी। मेरी सरपरस्ती में तुम्हें तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम पर यकीन नहीं करता। ये बात तुम्हें अभी से बता रहा हूं। मैं आपको खुद पर यकीन करने पर मजबूर कर दूंगी, क्योंकि जानती हूं कि मैं एक मजबूत किरदार की मालिक हूं। आप जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर लें, आप एक दिन मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सुनकर वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। मोहब्बत, यही कहा है ना तुमने? मेरी नादान कज़न, मोहब्बत से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और तुम मुझे अगर चेंज करने के बारे में सोच रही हो तो ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दो। तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल तो कर लूँगा, लेकिन कभी भी वो हक नहीं दूंगा जो तुम्हारा बनता है। और ये सारी बातें तुम्हें पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम खुद ही कोई समझदाराना कदम उठाओ। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर गया। आज उसका दिल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जब वो अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई तो रोने लगी। इकरा खामोशी से उसे देख रही थी। अभी भी बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं उस इंसान को नहीं छोड़ सकती। ये मेरे लिए नामुमकिन है। ठीक है, फिर एक बड़ी आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं। वो अपने आंसू साफ करते बेचैनी से बोली थी। वो ये बात नज़रअंदाज कर रही थी कि जिस काम को वो आसान समझ रही है वो उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम किसी की फितरत को तब्दील नहीं कर सकते। आदत तो तब्दील हो सकती है, लेकिन फितरत तब तक नहीं बदलती जब तक कि इंसान खुद कोशिश ना कर ले। उसके निकाह का दिन आ चुका था।
वो स्टेज पर बैठी थी और अपने होने वाले शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। वो मगरूर शहजादा मालूम हो रहा था। ऊंचा लंबा 6 फुट से निकलता कद, चौड़े शाने, उसका चेहरा मुस्कुराहट से पाक था। वहां पर एक अजीब सी संजीदगी थी जो हर किसी को निगाहें चुराने पर मजबूर कर देती। वो उसके पहलू में बड़ी शान से बैठा। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। वो अपने आप को उसके नाम कर चुकी थी। निकाह के बाद उसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी जब दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ से खुला। वो नाक की सीध में चलता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। आसपास उसने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया था और उसे यूं महसूस करवाया था जैसे उसका वजूद वहां पर है ही नहीं। वो खुद भी कोई खुशफहमी लेकर नहीं आई थी। उसने अपने आप को ज़हनी तौर पर हर तरह के हालात के लिए तैयार कर रखा था। मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद ना रखना। ना तो मैं तुम्हारे हकूक पूरे करूंगा और ना ही तुम्हें बीवी का दर्जा दूंगा। उसके ऊपर एक नाकदाना नजर डालकर उसने अपने ख्यालात का इजहार किया। वो अपने आंसू पीती हुई उठी और चेंज करके वापस बेड पर आ गई। किसकी इजाजत से तुम यहां बैठी हो? ये तुम्हारी माँ ने नहीं भेजा, ये मेरा अपना है, उसने नफरत आमेज लहजे में कहा। अगर आपने मुझसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना तो मत रखिए, लेकिन कम से कम इस तरह से बात तो ना करें। मेरा दिल दुखता है। मैंने तुम्हारे दिल को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। पहले ही बताया था कि इस रास्ते में कांटों के सिवा कुछ नहीं है। वो उसे बेड से उठा चुका था। अब वो परेशानी से कमरे में खड़ी चारों तरफ देख रही थी और सोने के लिए जगह तलाश कर रही थी। कुछ सोचते हुए वो सोफे पर आकर लेट गई। बहुत ज्यादा थकी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद सो चुकी थी, जबकि बासित की आंखों से नींद दूर थी। आज उस कमरे में एक और वजूद भी मौजूद था जिस पर वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप को धोखा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर उसे कोई रोते देख लेता तो शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि बासित रोने वालों में से नहीं बल्कि रुलाने वालों में से था। अम्मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने औरत जात पर से मेरा एतबार हटा दिया। काश आप मेरे बाप के साथ वो सलूक ना करती तो आज मैं भी किसी पर यकीन करने के काबिल होता। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक बार फिर से उसे अपनी माँ की वजह से नफरत महसूस होने लगी थी। उसकी माँ से उसके बाप ने बेहद मोहब्बत की थी। वो उसकी माँ को अपने घर की मलका बना कर रखता था, मगर इसके बावजूद भी इसकी माँ ने अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर इसके बाप को धोखा दे दिया और अपने 2 बच्चों को भी उनके पास छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से उसे औरत जात से नफरत हो गई। वो अपनी बहन पर भी हद से ज्यादा सख्ती करता था और छोटी छोटी बात पर उस पर शक करता, जिसकी वजह से नूर की जिंदगी भी अजाब बनी हुई थी। हालांकि वो बहुत मासूम थी, मगर वो घबराता था। उसे डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जमाने के जालिम मर्द उसकी बहन को भी अपनी मोहब्बत के झूठे झांसे में फंसा डाले। इसी वजह से वो कोशिश करता था कि उसकी बहन घर पर ही मौजूद रहे। ये बात तो वो जानता था कि आयशा एक मजबूत किरदार की मालिक है, मगर उसके बावजूद भी वो यकीन करने को तैयार नहीं था। और शायद ये इस वजह से था कि बचपन में ही उसने खुद से वादा कर लिया था और अब वो अपने नाम नेहाद वादे को पूरा कर रहा था। उसकी माँ ने बाद में इन लोगों से राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर इसने अपनी माँ से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब इसके बाप ने भी दोबारा उसकी माँ को जिंदगी में आने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो एक नागन के हाथों बार बार डसना नहीं चाहता था। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठा तो वो कहीं भी मौजूद नहीं थी, बल्कि किचन में खड़ी सब लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। उसके साथ साथ अब्बा जान से बातें कर रही थी। उसने नूर को देखा, जो कि आज मामूल से हटकर बहुत हंसी मजाक कर रही थी। जैसे ही वो वहां पर गया तो गहरी खामोशी छा गई। यह सब देखकर उसे थोड़ा सा बुरा महसूस हुआ, मगर उसने इजहार नहीं किया। आयशा ने उसके पसंदीदा आलू के पराठे उसके सामने लाकर रखे। इस पर भी इसने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। इसने एक नवाला लिया तो चौंक गया।
کیونکہ عائشہ کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا۔ اس کے بعد اپنے بابا کو سلام کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ پورا دن وہ اسی لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے موبائل نکالا اور عائشہ کے نمبر پر ایک میسج چھوڑا: میری اجازت کے بغیر تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا اور نہ ہی گھر میں کسی کو ملنے کے لیے بلانا ہے۔ جی ٹھیک ہے جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کر دیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آ گیا ہے۔ وہ اس پر حد سے زیادہ سختی کرتا، اسے اپنے سارے کام کرواتا، مگر وہ لڑکی اف تک نہ کرتی تھی۔ وہ اس پر غصہ بھی کرتا تھا اور ڈانٹتا بھی تھا، مگر آج تک عائشہ نے کبھی اسے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی ہر بات کو سہ جاتی، اس کے غصے کو برداشت کر جاتی اور خاموشی سے اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جاتی تھی۔ اسے اب کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس قدر صبر کیسے کر سکتی ہے، کوئی عورت اس قدر برداشت کی حامل کیسے ہو سکتی ہے۔ نور نے بھی جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت کر دکھایا۔ نہ ہی اس نے اپنے باپ کے سر کو شرمندگی سے جھکایا تھا اور نہ ہی اس نے اپنے بھائی کی عزت پر کوئی آنچ آنے دی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں صرف 3 مہینے کا کورس کرنے گئی تھی اور پھر کورس کے بعد وہ دوبارہ سے گھر میں ہی رہنے لگی، کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ عائشہ بھی وہاں پر چلی آئی تھی۔ وہ دونوں زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتی تھی۔ اب یہ دیکھ کر اسے جیلسی ہوتی۔ ایک دن وہ بولے بغیر نہیں رہ سکا: تمہیں اپنے شوہر کی کہاں پرواہ ہوگی؟ اس کے لیے تمہیں وقت ہی کہاں ملتا ہے؟ وہ پہلے تو حیران ہوئی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جتنی فکر میں اپنے شوہر کی کرتی ہوں اتنی کوئی اور بیوی نہیں کرتی ہوگی۔ وہ چپ کر گیا۔ اسے خود بھی حیرانگی ہو رہی تھی، وہ کیوں اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ وہ جو سوچتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی طرف مائل نہیں ہو پائے گا، آہستہ آہستہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک دن جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو اسے پتا چلا کہ عائشہ کا ایک مہمان اس سے ملنے آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وجدان وہاں آیا تھا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، فی الحال میرا شوہر گھر پر نہیں ہے اور اسے پسند نہیں کہ میں اس کی غیر موجودگی میں کسی بھی فرد کو یہاں بلاؤں۔ کیا ہو گیا ہے باجی؟ میں آپ کے بھائیوں جیسا ہوں، وجدان نے پریشانی سے کہا۔ ہاں میں مانتی ہوں اور میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی بھی ہوں۔ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتی، لیکن جو میرے شوہر کا حکم ہے وہ میرے لیے ماننا ضروری ہے۔ امید ہے تم میری بات کا برا نہیں مناؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ وجدان بھی فوراً وہاں سے پلٹ گیا۔ عائشہ نے اسے ہدایت کی تھی وہ شام کے وقت آئے جب اس کا شوہر گھر پر موجود ہو۔ حالانکہ اس وقت بھی نور گھر پر تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اس حرکت پر باسط کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی، یعنی وہ لڑکی اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کا خیال کرتی تھی۔ اب وہ اسے پسند کرنے لگا، کیونکہ عائشہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر باسط کی پسند میں ڈھال لیا تھا۔ باسط کو جس طرح کا لباس پسند تھا وہ ویسے ہی کپڑے پہنتی تھی، اس کو جس طرح کا ہیئر سٹائل پسند تھا وہ ویسے ہی بال بناتی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے رکھتی۔ رات کو جب وہ لیٹتا تو اس کے پاؤں دباتی۔ اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ ایک مرد کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اور پھر آخرکار وہ اس کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسے تھوڑا سا وقت لگا تھا اور اس نے تکلیفیں بھی اٹھائی تھیں، مگر یہ اس کے صبر کا ہی پھل تھا کہ وہ انسان اب اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا۔ اس کی زبان پر ہر وقت عائشہ کا نام ہوتا، وہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر اب اس کی صبح ہوتی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے ان دونوں کو بہت ہی پیارے بیٹوں سے نوازا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اس نے نور کی شادی بھی ایک اچھے گھرانے میں کر دی۔ وہ اکثر ہی عائشہ سے ملنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ جب وہ اپنے بھائی کا بدلا ہوا روپ دیکھتی تو عائشہ کو داد دیے بغیر نہ رہتی۔ فیروز خان کو بھی اب یقین ہو گیا تھا کہ ان کا فیصلہ زبردست ثابت ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کو صرف عائشہ ہی سنبھال سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔